Okay, so Mohit, let's proceed ahead with your mock interview for Bhabha Atomic Research Center, and you're from physics background, right? Yes, sir. Okay, so can you tell us about your favorite subjects, Mohit? So condensed matter, nuclear, and quantum mechanics. Quantum mechanics, nuclear, and condensed matter. Yes, sir. Anything more? So statistical mechanics and electromagnetic theory. Can you tell me the source of solar energy? Yes, sir. So basically, the main source of solar energy is our sun. That is a star. In that, solar energy is produced due to the fusion between helium atoms and hydrogen atoms. So why do we get more energy in fusion than in fission? No, sir. I think I'm not able to hear you. So there is some kind of disturbance at your side, Mohit. So now, maybe you. So yeah, are you using earplugs or something? Earphone? no, sir. Okay. So am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. My question to you was, what is the reason why fusion process has more energy than fission process? Second, I think for 1 minute. Yes, you can. Do you know something about binding energy concept? Yes, sir, I was. So actually, basically, fusion and fusion are both entirely different process. In fusion, we use the concept of binding energy. Basically, in the fusion process, the uranium, not the uranium atom, basically the particles which the heavier particles are converted into light particles. It happens because heavier particles are less stable because their NZ ratio is very. So basically, if particle have NZ ratio in between 1 and 1.3, then it is a stable particle. If the NZ ratio is more than 1.3, then basically. You must have studied periodic table also, Mohit, in your school. Yes, sir. Can you tell me the element having maximum binding energy in the periodic table? Yes, sir, it is iron, sir. 8.79 energy. Yes, what is the interpretation of that? So basically, the actual reason for its high binding energy is due to the due to the magic number that the iron possesses. The reason comes out of the reason, precise reason behind this is due to the nuclear shell model, which was given to explain the extraordinary stability of some nuclei like iron, lithium. So because these particles have some magic numbers like 2, 8, 20. These particles have high stability. It is due to this theory. It was due to some theory that says that the nucleus is composed of some shell structures. Neutrons and protons inside the nucleus are arranged in shell-like structure, and it is analogous to the arrangement of electrons in atoms. Because as we see that electrons are arranged in some shells, and the shells which have and we have closed shells at 2, 8, and 18, and the particles which have valence elements close to this closed shell, they have extraordinary high stability. The same concept applies to the nuclear shell model. In that, the particles like iron, which have magic numbers like 2, close to 20, and I think 32, they have extraordinary high stability. Okay. Okay, Mohit, have you do you know what is the control rod in a nuclear reactor? Yes, sir. What is the application of that? So can I explain in Hindi this concept? हाँ, हिंदी में बोलो. सर बेसिकली हम कंट्रोल रोड्स कैडमियम की बनी होती हैं. सर हम न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं. सर एक्चुअली जो न्यूक्लियर रिएक्शन का रेट होता है वो काफी हाई होता है. सपोज करो कि जो रेट R इक्वल्स टू R नॉट इक्वल टू की पावर माइनस वो T की माइनस लैम्डा इनटू T का प्रोपोर्शनल होता है. तो आई थिंक अगर हम टाइम पीरियड को जस्ट आई थिंक 0.1 सेकंड भी अगर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन का रेट 10,000 टाइम इंक्रीज होता है. तो सर बेसिकली हम कैडमियम रोड्स को यूज करते हैं वो कंट्रोल करने के लिए. एंड इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट यूज होता है. बेसिकली हम इसमें कैडमियम रोड्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी इतनी हाई नहीं होती, इसके थ्रू हम रिएक्शन को कंट्रोल कर सके हैं. तो सर इसके लिए हम वो जो
मैकेनिज्म का यूज करते हैं, जो प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स एंड डिलेड न्यूट्रॉन्स का कंसेप्ट यूज करते हैं। प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स सर वो होते हैं जो कि रिएक्शन के थ्रू निकलते हैं, दैट इज आई थिंक 2.5 न्यूट्रॉन। एंड डिलेड न्यूट्रॉन्स वो होते हैं जो रिएक्शन को, जैसे कि हमारा जब रिएक्शन के प्रोडक्ट्स बनते हैं वो जेनॉन एंड क्रिप्टन, एंड ये वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये एक्चुअली बीटा नेगेटिव होते हैं, ये भी स्टेबल नहीं होते रिएक्शन के बाद। तो सर जब ये बीटा नेगेटिव के थ्रू डिके करते हैं तो ये अलग से न्यूट्रॉन्स रिलीज करते हैं। और सर इन जो ये बाद में न्यूट्रॉन्स रिलीज करते हैं इनका लाइफ टाइम 10⁻⁻⁶ सेकंड होता है। एंड सर जो पहले वाले न्यूट्रॉन्स होते हैं उनका लाइफ टाइम और कम होता है। तो सर हम रिएक्शन को इस तरीके से मैनेज करते हैं कि जब ये बाकी वाले न्यूट्रॉन्स पिक्चर में आए तो भी रिएक्शन हमारा स्टेबल हो। उनसे हमें चेन रिएक्शन के लिए 3 न्यूट्रॉन्स चाहिए होते हैं। तो ओके, मेरे को ये बताइए ये हैवी वाटर क्या चीज होती है मोहित? जैसे बेसिकली हैवी वाटर हम D2O यूज करते हैं इसके अंदर कि उसको कि जो रिएक्शन को एक्चुअली स्लो डाउन करने के लिए यूज करते हैं इसको। हम स्लो डाउन क्यों करना चाहते हैं रिएक्शन को? बेसिकली सर जो हमारा यूरेनियम 235 होता है उसके अंदर सपोज करो कि हम न्यूट्रॉन स्ट्राइक डाउन करते हैं, तो उसे बेसिकली हर एलिमेंट का एक एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन होता है एंड एक फिजन क्रॉस सेक्शन होता है। सर एक पर्टिकुलर अगर न्यूट्रॉन्स की स्पीड सपोज करो IQ keV है तो वो फिजन क्रॉस सेक्शन के अंदर आएगा। इसका 579 बार होता है फिजन क्रॉस सेक्शन। अगर सपोज करो कि हमने इसकी स्पीड 1 MeV कर दी तो सर ये फिजन ना होकर इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसलिए हम पहले जो न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करते हैं ताकि ये इसको फिजन कर पाए, इसको एब्जॉर्ब ना करें, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। हाँ, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। एक्चुअली सर हम D2O का यूज भी इसलिए करते हैं, तो हम H2O का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन H2O का यूज करने में हमें प्रॉब्लम होती है कि जो H2O का अभी जो एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन है काफी हाई होता है, तो इसलिए भी हम H2O का यूज कुछ आप मेरे को यूरेनियम, जो आपका यूरेनियम एक मटेरियल है, न्यूक्लियर मटेरियल, राइट? यस सर। कुछ और मटेरियल्स के नाम बता सकते हैं? यस सर, वो हम प्लूटोनियम का यूज कर सकते हैं, एंड यूरेनियम 235 का यूज कर सकते हैं, 233 का कर सकते हैं, एंड सर एक्चुअली 239 का हम कर सकते हैं। वो तो प्लूटोनियम हो गया। हेलो, व्हाट इज यूरेनियम 238? जैसे 238 का सर हम यूज, ये बेसिकली फ्यूजनेबल मटेरियल में आते हैं, फिशाइल मटेरियल में नहीं आता। वैसे बेसिकली इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो एक्चुअली 1 MeV पे होता है, एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन। इसकी प्रोबेबिलिटी होती है फिजन करने की वो 1 MeV के अराउंड होती है। आप 238 से 235 कैसे जाते हो आप? हाउ डू यू गेट 235 फ्रॉम 238? सर 238 इसमें सर 233 के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं 233 यूरेनियम का एंड 238 का, तो सर वो कंबाइन होकर 235 दे सकते हैं। नेचर में कौन सा मिलता है? सर नेचर में 238 मिलता है। और ये 235 की रिक्वायरमेंट क्या है? सर वो जो मैंने बताया ना कि 235 का जो एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन होता है वो एक्चुअली वो हाई होता है 238 से, इसलिए बॉम्ब में कौन सा यूज होता है? 235 न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर से यही यूज होता है 235। येलो केक सुना है आपने, क्या होता है येलो केक? नो सर, क्यों नहीं सुना? सेंट्रीफ्यूज? नो सर। सेंट्रीफ्यूज बेसिकली जो इसके थ्रू हम 235 की एनरिचमेंट करते हैं ना, बेसिकली हमारे पास ये बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में होता है, तो सर हम सेंट्रीफ्यूज के प्रोसेस के थ्रू इसको एनरिच करते हैं। आई थिंक 3.5% के अराउंड तक एनरिच करते हैं ताकि हमारा जो न्यूक्लियर रिएक्शन वो कंटिन्यूअस रहे, सस्टेनेबल रहे। थोरियम के बारे में जानते हैं? यस सर। थोरियम भी यूज होता है? यस सर, थोरियम भी यूज होता है। अच्छा, ये न्यूक्लियर फ्यूल्स का जब वेस्ट जब हो जाता है इसको, तो कैसे हम इसको डिस्पोज ऑफ करते हैं? सर एग्जैक्टली तो सर मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन सर अभी तो सर मैं न्यूज स्टडी किया तो उसमें तो सर अभी जो सी के अंदर डंपिंग भी करते हैं सर। एक कंट्रीज ने कुछ स्पॉट्स बनाए हुए हैं जहाँ पे उनकी डंपिंग होती है, तो ये काफी डेंजरस होते हैं अगर आप नेचर में इसको डालते हैं तो। अच्छा, ये आप मेरे को बताइए हाफ लाइफ के बारे में क्या जानते हैं? जैसे बेसिकली जब कोई भी हाफ लाइफ को मेजरमेंट होती है, जब सपोज करो कि हमारे पास n0 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं, जिस टाइम में उनका जो अमाउंट है वो हाफ हो जाएगा, तो उस टाइम पीरियड को हम हाफ लाइफ बोलते हैं। अगर किसी कंपोनेंट की हाफ लाइफ 1 सेकंड है तो कितने टाइम में पूरी तरह से वैनिश हो जाएगा? सर जरूरी नहीं है कि सर वो पूरी तरीके से वैनिश हो। सर हाफ लाइफ का मतलब ये नहीं होता कि वो पूरी तरीके से वैनिश हो, वो बेसिकली एक एसिम्प्टोटिकली भी वैनिश होता है। सर काफी सारे पार्टिकल्स है जो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं तो कभी भी वैनिश नहीं हुए। ऐसे कि आपने एग्जांपल दिया था यूरेनियम का ही है,
तो काफी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले भी था, लेकिन उसकी जो अभी तक वो पूरा कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ। अच्छा, आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा आपने? यस सर। आपने मर्क्यूरी थर्मोमीटर देखा है क्या मोहित? यस सर, देखा सर। उसमें मर्क्यूरी क्यों यूज करते हैं हम? सर बेसिकली मर्क्यूरी की प्रॉपर्टी होती है वो एक्सपेंशन करता है, अगर आप उसकी हीट के कांटेक्ट में लाते हो ना, तो सर हम अगर थर्मामीटर में मर्क्यूरी यूज करते हैं तो वो जब एक्सपेंड करता है हमारे टाइम कांटेक्ट में आने पे, तो सर हम उसको मेजर कर सकते हैं कि बेसिकली कि कितना एक्सपेंड किया। सर अगर हम अदर पार्टिकल्स का कंपेरिजन करें, जो एक्सपेंशन कोएफिशिएंट होता है मर्क्यूरी का वो हाई होता है, तो सर हम इसलिए इसको इजीली मेजर कर सकते हैं। मर्क्यूरी का जो आपका वेपर प्रेशर बहुत कम होता है। यस सर। अब बताओ इसकी प्रॉपर्टी का क्या बेनिफिट मिलता है हमें इसको एज अ थर्मोमीटर बनाने में? सर वेपर प्रेशर, सर कैन आई थिंक फॉर दिस क्वेश्चन। सर बेसिकली वेपर प्रेशर का मतलब तो ये होता है कि जैसे अगर हमारे पास वेपर प्रेशर अगर ज्यादा अगर कम होगा तो सर वो बेसिकली इजीली इवेपोरेट हो जाएगा। नहीं, वो इजीली इवेपोरेट नहीं होगा। इजीली इवेपोरेट नहीं होगा सर। आप कम प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं किसी जगह पे? यस सर, करते हैं सर। कैसे करोगे बहुत कम प्रेशर क्रिएट? सर एक्चुअली सर उसको प्रेशराइज करके कर सकते हैं सर, उसको प्रेशराइज ज्यादा प्रेशर बढ़ता है, कर सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं सर, एक्सपेंड कर सकते हैं ना उसको, तो तब हो जाएगा वो। तो आपको वर्क करना पड़ता है। यस सर, वर्क डन होता है उसके अंदर सर। तो कम प्रेशर, बहुत कम प्रेशर क्रिएट करना इज डिफिकल्ट। यस सर, यस सर। ओके ओके, ओवर टू यू ज्योति। You have said that you have read about thermodynamics. Can you write second law of thermodynamics and explain it? यस मैम। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे आता है कि किसी की भी जो हीट इंजन की एफिशिएंसी है, वो जो अगर हम उसका आई थिंक आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट नेम, जो रिवर्सिबल हीट इंजन होता है उससे हाई नहीं, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, उससे कम ही होगी। सर बेसिकली मैं इसका मतलब ये भी होता है कि हम जो हीट सप्लाई होता है वो बेसिकली लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर अपने आप हीट सप्लाई नहीं हो सकती, हमें वर्क डन करना पड़ेगा उसको। तो इसका एक मैथमेटिकल फॉर्म होगा, वो लिख सकते हो? यस मैम, बेसिकली मैं इसके थ्रू मैम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो ये ईटा मैम एफिशिएंसी को डिनोट करता है। आई थिंक यू आर एबल टू सी दैट। यस, ईटा एफिशिएंसी को डिनोट करता है, ये वर्क डन है जो हमें करना पड़ा है, एंड हम ये हीट है जो हमने सब सोर्स के थ्रू लिया है, तो जो इसकी एफिशिएंसी होगी वो हमेशा लेस देन 1 रहेगी, कभी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती। okay, so can you tell me what are state functions? यस मैम, जो बेसिकली एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करे, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते, उनको स्टेट फंक्शन बोलते हैं। Okay. Can you write the Maxwell's potential and derive them also? सॉरी मैम, ये मैंने अभी स्टडी नहीं किया, इसका डेरिवेशन तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन पोटेंशियल्स में लिख सकता हूँ। Explain about them. बेसिकली मैक्सवेल पोटेंशियल तो हम रिलेशंस फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं हम किसी भी दो थर्मोडायनामिक्स क्वांटिटी के बीच में। जैसे कि जब हम तो मोल फ्री एनर्जी का जो फंक्शन होता है वो U माइनस TS के इक्वल होता है। तो कितनी है मैक्सवेल्स ये पोटेंशियल्स, कितनी है टोटल? इक्वेशन में 4 इक्वेशंस हैं इसमें। तो क्या लिख सकते हो तुम थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स कौन कौन सी हैं जिनको बोलते हैं? यस मैम, अच्छा एंट्रोपी, प्रेशर, एनर्जी, वो इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर होता है। एंट्रोपी, प्रेशर। यस मैम, SP I think entropy, pressure, and internal energy and temperature. I think that relation. Oh, that is first relation. But Yes, I'm talking about what are thermodynamic potential. Okay.
Fine. So can you explain what is entropy? यस मैम, बेसिकली हमें किसी भी सिस्टम के अंदर रैंडमनेस या डिसऑर्डर को मेजर करता है। यही एक क्वांटिटी है जो थर्मोडायनेमिक्स को स्टेट से रिलेट करती है। Can you write second law of thermodynamics in terms of entropy? यस मैम, बेसिकली ये इसको मैं एग्जैक्टली मैम स्टेटमेंट तो नहीं याद मुझे, लेकिन मैं अपने टर्म्स में बता सकता हूँ कि अगर हम किसी भी सिस्टम पे वर्क करते हैं तो जो सिस्टम के एंट्रोपी में चेंज होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो बेसिकली जो हम कंक्लूड ये कर सकते हैं उसमें। This is not equation of second law. Yeah. जैसे इक्वेशन ही मैंने स्टेटमेंट लिखा था ये तो सेकंड लॉ से तो एंट्रोपी चेंज का पता चलता है ना। यस सर, यस वही सर, चेंज मैडम आपसे पूछ रहे हैं, आप वो चेंज की इक्वेशन बता सकते हैं? इक्वेशन ds is equal to what? यस सर, दैट इज सर ds is equals to integral over dq over t सर। इंटीग्रल ऑफ dq over t, ये इक्वेशन है या इनइक्वालिटी है? यस Greater or यस सर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है सर, मिनिमम इसके इक्वल हो गया एटलीस्ट, ग्रेटर देन इक्वल टू। इक्वेशन बनाओ इसको। सर आप थोड़ा हिंट दे सकते हैं, आप किसके टर्म्स में पूछना चाह रहे हैं इक्वेशन? भाई एंट्रोपी जनरेशन के टर्म में। एंट्रोपी और किसके साथ रिलेशन पूछ रहे हैं? एक तो एंट्रोपी होगा और दूसरा रिलेशन कौन सा होगा? एंट्रोपी जनरेशन आ रही है आपकी इक्वेशन में? entropy और Q जो है heat? यस मैम, तो बेसिकली अगर आपने कोई भी हीट दिया है तो मैम मैं उसको थोड़ा, अगर आपने टेम्परेचर चेंज किया है अगर T1 से T2 तो मैं एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। अच्छा, मैं आपको एक केस स्टडी देता हूँ मोहित, आप उसकी एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हैं क्या? आप मेरे को एक ग्लास ऑफ वाटर मैंने आपको दिया, मेरे को उसकी एंट्रोपी निकाल के बताओ। कमरे में पड़ा हुआ ग्लास का पानी पड़ा हुआ ग्लास के अंदर। यस सर, उसकी एंट्रोपी बताओ कितनी होगी? सर उसका कुछ आपने टेम्परेचर चेंज किया या कुछ और? मतलब ये कुछ नहीं किया, मैंने ग्लास रखा हो पानी का कमरे में। तो सर चेंज तो जीरो होगा उसके अंदर तो। एंड मैंने चेंज पूछा ही नहीं, मैंने उसकी एंट्रोपी पूछी। स्टेट फंक्शन है ना एंट्रोपी। यस सर, यू कैन कैलकुलेट इट एट पर्टिकुलर स्टेट। यस सर, सो कैलकुलेट इट। नहीं सर, एब्सोल्यूट वैल्यू तो मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, इसमें चेंज तो कैलकुलेट कर सकते हैं। एब्सोल्यूट अच्छा, मैं आपको एक हिंट देता हूँ। यस सर, आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं इस पेन की। यस सर। कैसे? सर आपने हाइट पे है तो mgh तो हो जाएगी इसकी एच पोटेंशियल कितनी लोगे? सर जो भी हमने अभी रेफरेंस पॉइंट सेट किया होगा ना जहाँ पे जीरो होगा, यस, रेफरेंस पॉइंट इज द आंसर। यस सर, अब किसी भी चीज को आप उसका चेंज भी निकाल सकते हो दो स्टेट्स के बीच में। आप उसको Yes. एक स्टेट पे निकाल भी सकते हो, लेकिन आपको एक स्टेट को रेफरेंस लेना पड़ता है। यस सर, अब जैसे आप पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस मांग रहे हो मेरे से, यस सर, वैसे ही ग्लास ऑफ वाटर के लिए रेफरेंस ले लो। यस सर। लो जैसे वो रेफरेंस तो 0 आपके डिग्री सामने सेंटीग्रेड। ना, वो तो आप सब्जेक्टिव हो गया सर। जैसे कि तो सर ये भी तो सब्जेक्टिव है।
आपको क्या पता मैंने कहां से इसको पोटेंशियल एनर्जी मेजर कर रहा हूँ? यहाँ पे टेबल पड़ा हुआ है, तो इफ आई टेक रेफरेंस एज अ टेबल, different potential energy. Now I am taking this side. Now there is a floor. Yes, sir. The floor, and on the floor, if I take now, potential energy will increase. Yes, sir. Similarly, if I go outside, maybe balcony, then maybe Yes, I am at top floor, maybe these are different. So similar to that, the moment you Yes. change reference, your values change. Yes, sir. Can you calculate now entropy? Sir, can you tell me the reference point? 0 degree centigrade. Yes, sir. Sir, 50 degrees. Yes, sir, it will be equal to the specific heat of water, actually. Specific heat of Water, sir. So actually अगर हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं इसमें सेंटीग्रेड अगर यूज करके, आप तो dq कैसे निकालते हैं? ऐसा dq सर एक्चुअली अगर that is equal to change in internal energy plus work done on the water. वाटर के लिए dq निकालना हो, कैसा कैसे Water के लिए अगर आपको निकालना होगा, तो फिर हमें बस टेम्परेचर चेंज चाहिए, वैसे आपने वर्क डन तो किया नहीं, वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, तो सर cv dt के थ्रू हम वो चेंज इन हीट निकाल देंगे उसका. mcp dt, right? Yes sir, mcp dt. Yes sir. Over t. Yes sir. Yes sir. Integrated. Yes sir. क्या बनेगा इंटीग्रेशन? So m into c नेचुरल log t आ जाएगा सर. log t Yes, आ sir. जाएगा, उसकी लिमिट्स लगाओ. Yes sir. 0 and I think 37 degrees Celsius. अगर डिनोमिनेटर में 0 ले रहे हो तो कैसे आएगा? डिनोमिनेटर में सर कैसे, तो उसमें तो सर हम m into c नेचुरल log 37 माइनस, तो केल्विन में कन्वर्ट करके कर सकते हैं ना इसको? कर सकते हैं या करते हैं? करते हैं सर, मतलब केल्विन में करते हैं हम. ओके. So you have said that you have also prepared quantum mechanics. Yes Can ma'am. you draw the wave function of finite step potential for V greater than E? It will be sinusoidal function will be there. Sinusoidal. I will. It will be like that. Sinusoidal function will be there. Okay, this one. Yes ma'am. Okay, can you tell me what is degeneracy of 3D potential box? Degeneracy of three-dimensional potential box. Yes. Yes ma'am. I have to find, actually I don't remember it. Okay, fine. Okay. So can you tell me what perfect conductor, can you draw the resistance versus temperature curve? Yes ma'am. It will be like that. Resistivity, I have done resistivity versus temperature. Okay. Can you draw the same curve for and Hello? then
Hello. I am not able to. You are not audible actually. Hello. Hello. Yes, ma'am. Please ask the question. Can you draw the same curve for copper? Yes, ma'am. It will be like that. Okay. What is the difference between these two? This gap comes to impurities actually. If there are no impurities, then it will then resistivity is zero at temperature tends to zero. But in general, there are impurities in some metals, so the resistivity is not exactly zero when temperature goes to zero. Okay, fine. So you have also prepared condensed matter physics, right? Yes, ma'am. So are you aware of any technique like SMT? XRD, ma'am. Divide share method I am aware of. You are aware of? वो share method, वो rotating crystal method is there, na? Love's method, and I think I don't know the name actually. Divide share method is there, through which we can figure out the lattice parameter actually using this experiment. Are you aware of XRD? Yes, ma'am. Can you tell the basic principle of XRD? Yes, the basic principle is that when X-ray falls on a crystal, it undergoes diffraction due to the atoms present in the crystal actually. What is the main concept used in XRD? बेसिकली अगर हम प्रोसीजर को एक्सप्लेन करते हैं तो अगर जो क्रिस्टल्स होते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स लाइट को अलग अलग एंगल्स पे स्कैटर करते हैं। तो अगर हमें उनके बीच अगर हमें सपोज करो कि लैटिस पैरामीटर डिटरमाइन करना है तो जो डिफ्रैक्शन कंडीशन होती है 2d sin थीटा इक्वल्स टू n into लैम्डा। तो सपोज करो कि हमने अगर ऐसे अगर कोई डिवाइस शेयर मेथड के थ्रू अगर हम मेजर करते हैं उसको, अगर हम बेसिकली उसको लेटेस्ट पैरामीटर अगर हम चाहते हैं कि लेटेस्ट प्लेन्स की जो स्पेसिंग है उनको मेजर करें, तो सपोज करो कि हमने पॉलीक्रिस्टलाइन ग्रेन ले लिया है जो अलग अलग एंगल पे स्कैटर करेंगे लाइट को। हमें लाइट की वेवलेंथ पता है, तो अगर हम लाइट की वेवलेंथ पता है और एंगल पता है, तो जो बेसिकली उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम जो लेटेस्ट प्लेन की स्पेसिंग है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। इसको लॉ को एक नेम है ना, ब्रैग्स लॉ। यस मैम, ब्रैग्स लॉ के थ्रू। यस मैम। So can you write the formula for Braggs law? That 2d sin theta equals to n into lambda. Okay, fine. Can you explain the Pn junction and energy function at Pn junction? At which energy, ma'am? Of Pn junction. Yes, ma'am. You are asking about the functioning of Pn junction? No, the energy, Fermi energy diagram of Pn junction. Yes, ma'am. Explain it too. Okay. And that is the Fermi energy diagram of the Pn junction. That is actually जब हमारे पास suppose करो कि temperature 0 है तो जो Not able to see. Can you like? Wait a minute. I think I have to get some mistake. Yes, ma'am. That is that. Okay. Okay. Now बेसिकली हमारे पास जब टेम्परेचर T इक्वल्स टू TF है तो जिसकी प्रोबेबिलिटी होती है फाइंड आउट करने की वो 1 होती है। मतलब जिससे भी किसी भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने अपर मोस्ट शेल्स तक भरे होते हैं। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लोअर शेल से निकल के हायर शेल्स में जाना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ से डिक्रीज होना कम कर देती है। और जो हाई टेम्परेचर पे प्रोबेबिलिटी है वो फाइनाइट वैल्यू होती है। नॉर्मल अगर हम फर्मी टेम्परेचर तक बात करते हैं तो जो हाई टेम्परेचर से प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है, तो फर्मी टेम्परेचर तक जो प्रोबेबिलिटी होती है 1 होती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सभी शेल्स में फिल अप हो रखे होते हैं। what are superconductors? इसमें बेसिकली सुपरकंडक्टर्स जिनकी रेजिस्टिविटी हम टेम्परेचर को 0 करते हैं, अगर टेम्परेचर को 0 केल्विन पे करते हैं तो उनकी रेजिस्टिविटी एक्चुअल में 0 होती है। उसकी वेरी लो रेजिस्टिविटी बहुत लो होती है अगर हम ऐसे टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं। उनको हम परफेक्ट कंडक्टर्स नहीं बोल सकते क्योंकि हम कंडक्टर्स एंड सुपरकंडक्टर्स में डिफरेंस होता है। बेसिकली जो कंडक्टर्स होते हैं वो कभी इमेजिनरी इफेक्ट शो नहीं करेंगे, ऐसे परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म होता है।
लेकिन जो सुपर कंडक्टर है उनके अंदर स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि वो परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म शो करते हैं। जैसे कि हम उनके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड पास करेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड को एक्सक्लूड कर देंगे अपने सरफेस से, तो उनमें मैग्नेटिक फील्ड कभी प्रेजेंट नहीं होगी। तो ये वो प्रॉपर्टी है जो इन दोनों में डिफरेंशिएट करते हैं हम कंडक्टर्स में और सुपर कंडक्टर्स में। Okay. Are you aware of accelerators? Yes, ma'am. Can you tell the functioning of accelerator? बेसिकली एक्सेलरेटर हम यूज करते हैं कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को हाई एनर्जी तक एक्सेलरेट करने के लिए। तो बेसिकली पहले तो हम लीनियर एक्सेलरेटर यूज करते हैं जिसके अंदर हमारे जो डिफरेंट साइज की ट्यूब्स होती हैं, तो उनके अंदर हम जैसे हमारा पार्टिकल्स एंटर करता है ट्यूब के अंदर, तो उसको हम एक ऐसे कि सपोज क्योंकि हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है उसने एंटर किया है, तो हम एक पॉजिटिव पोटेंशियल देते हैं ट्यूब के एंड पे, जो उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, तो वो उससे एनर्जी में एक्सेलरेट हो जाता है। जैसे वो एक ट्यूब के एंड में पास आउट करता है तो जो नेक्स्ट ट्यूब होती है उसकी पोलैरिटी चेंज कर देते हैं ताकि वो उसको अट्रैक्ट कर ले। तो जैसे वो नेक्स्ट ट्यूब में पास आउट करता है फिर से पोलैरिटी को चेंज करते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द ट्यूब्स तो उसकी एनर्जी को हमें सफिशिएंट लेवल तक वो एक्सेलरेट कर सकते हैं, उसे बढ़ा सकते हैं। So this accelerator is made up of which material? Are you aware of it? Linear accelerator. No, ma'am, I don't know actually exactly. And can we accelerate all the charges? That we can accelerate all. Yes, ma'am. Basically, we can accelerate. Actually, we can accelerate electrons to a sufficient energy. After that, they will show the relativistic effect and their mass will change. So we cannot accelerate them beyond a specific point. For that, another accelerator that beta, I think synchrotron are made up. Okay, so what is the function of this synchrotron? Yes, ma'am. Basically, that synchrotron is made up of the principle that when the radius of the d is changed according to the change in the mass of the electron. Basically, हम वो जो जिस फ्रीक्वेंसी में इलेक्ट्रॉन को रोटेट करते हैं वो सिंक्रोनाइज कर देते हैं उसके मास के साथ। जैसे उसका मास चेंज होते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी वो चेंज कर देते हैं। तो सपोज करो कि उसने अपना मास चेंज किया तो वो नॉर्मल एक्सेलरेटर में क्या होगा कि वो आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन चला जाएगा और वो पार्टिकल बाहर की तरफ मूव कर जाएगा। लेकिन सिंक्रोट्रॉन के अंदर क्या होता है कि वो उस फ्रीक्वेंसी को भी चेंज करता रहता है जिस फ्रीक्वेंसी वो इलेक्ट्रॉन के साथ ही। तो इस इलेक्ट्रॉन ने अपना मास चेंज किया तो उसी के रिस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देगा ताकि जो इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट है वो स्टेबल रहे, उसको चेंज ना करें। Can you tell the functioning of nuclear reactor? Yes, ma'am. Basically, nuclear reactor में हम यूजुअली यूरेनियम 235 यूज करते हैं। सपोज यूरेनियम 235 पे अगर हम न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करते हैं एक सपोज 2 keV की एनर्जीज पे, तो वो बेसिकली तो वो स्प्लिट अप हो जाता है जेनॉन में एंड क्रिप्टॉन में, और उसके बाद 2.5 न्यूट्रिनोज बाहर निकलते हैं। वो जो न्यूट्रिनो होते हैं वो जो बाकी जो अमाउंट यूरेनियम का प्रेजेंट है उसके बाद स्ट्राइक करते हैं और वो फिर उसके अंदर ऐसे ही स्ट्राइक करके वो दोबारा स्प्लिट होता है जेनॉन और क्रिप्टॉन में, फिर न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं। तो इसी तरीके से एक चेन रिएक्शन बिल्डअप हो जाता है और उसके थ्रू हमारे पास एनर्जीज प्रोड्यूस होती है। एनर्जी प्रोड्यूस इसलिए होती है बेसिकली जो यूरेनियम 235 वो स्टेबल नहीं होता, तो जब वो अपने जो स्टेबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है तो अपनी बाइंडिंग एनर्जी को रिलीज करता है। Okay, fine. So, are you aware of spectroscopy? I don't know much about the spectroscopy. Fine. Then that's all from my side. Yes, ma'am. Yes, Jyoti, we give the feedback now. Yes. मेरे को ये लगा कि तुम यार कोई भी क्वेश्चन का आंसर ना मतलब बहुत ज्यादा दे रहे हो, जितना चाहिए उतना उससे ज्यादा, मतलब कुछ क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है वो और तुम कुछ और डायरेक्शन में आंसर कर रहे हो, मेरे को ये लगा। Yes, sir. जैसे आपने कुछ एक्सप्लेन किया चीज को, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, आप किसी और डायरेक्शन में जा रहे हो। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनना पहले और क्लियर करना क्वेश्चन क्या है, फिर उस डायरेक्शन में आंसर देना, क्योंकि अगर तुम कोई और डायरेक्शन में आंसर दोगे ना तो वो उनको इरिटेट करेगा। Yes, sir. वो कुछ और पूछना चाहते हैं और आपको बहुत क्लियर होना है कि उन्होंने क्या पूछा, देन उस डायरेक्शन में आंसर दीजिए आप। जैसे आप एक एग्जांपल दे सकते हैं कि मैंने कौन से क्वेश्चन का कैसे, मुझे आइडिया नहीं है कि मैंने किस क्वेश्चन का कैसे आंसर दिया था अभी।
आपको कुछ आइडिया हो तो मैंने कुछ आपने कोई क्वेश्चन पूछा हो, मैंने आंसर कुछ और दिया हो। I think Jyoti is going to tell you something. Yes. जैसे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आई आस्क्ड, तो उसको सीधा यही बोलना था, ds is equal to dq by t, so you extended it unnecessarily, मतलब डायरेक्ट जो पूछ रहे हैं ना बेसिक्स वो करो। और मुझे ये भी लगा कि थर्मोडायनेमिक्स क्लियर नहीं है, जबकि थर्मोडायनेमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स वो सबसे ज्यादा पूछते हैं बार्क में। इसमें मैं थर्मोडायनेमिक्स अभी प्रिपेयर नहीं किया है। अच्छा, तुमने ही स्टार्टिंग में एक्चुअली बोला। मैंने तो कंडेंस मैटर एंड क्वांटम एंड वो बोला न्यूक्लियर, तीन सब्जेक्ट्स बोले थे। तो ये सब चीजें थोड़ा प्रिपेयर करना। तो सर एक्चुअली सर मेरा क्वेश्चन है, सपोज सर मुझे किसी क्वेश्चन का एग्जैक्टली आंसर नहीं पता है, जैसे हमने वो क्वेश्चन पूछा था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मुझे एग्जैक्टली जो स्टेटमेंट है वो पता नहीं था, तो सर मैं उसके एक्चुअली पता क्या होता है, बीआरसी में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में वो तुम्हारे से आंसर एक्सपेक्ट नहीं करते हैं मोहित, तुम्हारा अप्रोच चेक करने की ट्राई करते हैं और तुम्हें बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अभी ये जो तुम बता रहे थे ना dq by t is equal to ds, इतना तो बच्चों को नॉलेज होता है। तुम्हें जरा भी नॉलेज नहीं था, क्या था तुम्हें जरा भी पता नहीं था इसके बारे में? नहीं सर, जो मैंने स्टेटमेंट्स पढ़ी थी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, सर स्टेटमेंट तो अलग होती है, तो सिंपल एक फॉर्मूला है ना डीएस वाला, वो तो डिराइव करके आता है। तो फार्मूला डिराइव करके फाइनल एक्सप्रेशन तो आता ही है उसका, क्योंकि सेकंड लॉ एंट्रोपी ही तो निकालता है। ऐसे ये तो पता था मुझे, लेकिन जैसे कि जो अब आप ऐसे किसी ने पूछा कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, तो उसमें जो एक्चुअल स्टेटमेंट है वो तो दूसरी होती है ना कि you should tell के sir should I explain you the two statements of second law or should I write the equation, because they will ask you to go on the board and then you will be on the board. So the moment you say कि sir मेरे को statement बतानी है दो जो second law की है, Kelvin, Planck and Clausius, या मेरे को equation लिखना है, yes sir, you should be very clear, you know, and then they will say okay you please write the equation, तो फिर तुम equation लिखो, yes sir, फिर उस इक्वेशन के आगे चलो। सो अभी ना आप जो बता रहे हो और वो जो पूछ रहा है उसमें मिसमैच है, yes sir, तो मेरे को लगा मोहित। और नंबर टू, बीएआरसी नॉलेज के बेस पे कभी क्रैक नहीं होता, बीएआरसी आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड और आपके अप्रोच के बेस पे क्लियर होता है। yes sir, तो आप अप्रोच वहां पे रखोगे ना, उसके बेस पे क्लियर होता है, उस डायरेक्शन में सोचते चले जाओ। जैसे मैंने आपसे कंट्रोल रॉड पूछा, आपसे मैंने न्यूक्लियर फ्यूल्स के बारे में पूछा, आप कंट्रोल रॉड्स के बारे में भी, कैडमियम मैंने पूछा नहीं मटेरियल कौन सा है, मैंने कंट्रोल रॉड होती क्या है, क्या पर्पस है उसका, एप्लीकेशन क्या है। तो एज द नेम शोज इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द फिशन प्रोसेस, दैट कैन गो अनकंट्रोल्ड, यू नो। I don't want uncontrolled fission process because that will lead to some kind of blast, explosion. I don't want that. So I want control. For that I need to consume some neutrons which are excess neutrons, right? yes sir, You just see what is his question. He says control rod कौन से material का बना होता है, then you should say, because I asked you what is control rod and you are explaining so much about the cadmium. So what information you have, you are trying to give that information. You are not telling him what he is asking. There is a mismatch actually. yes sir, And knowledge तुम्हें होता है, तुम lack of confidence में मत आओ, मत करो अपना। तो बच्चे डरते हैं बीएआरसी के इंटरव्यू से, डरते हैं कि पता नहीं क्या पूछ लेगा, बड़ा नॉर्मल सा इंटरव्यू होता है, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करता है वो। Let me tell you honestly one thing, if a small kid is asking you question, the same question which we asked, if a small kid is asking you those questions, you will be in better position to answer everything, and that is how it is required. So assume them small kids, that's it. yes sir, Small kid is asking you a question and you have to explain it very nicely, the way it should be. yes sir, Don't assume there are some big scientists sitting over there and they're asking you and you need to have extra knowledge for something like that. No, they're asking you very basic questions. okay sir, My side also, please read class 11th and 12th. So basically they start from class 11th, 12th, then they will go to higher levels. So with the statements which are written in class 11th, 12th, if you answer them like that, then that will be better, because you will be asked to derive the basic equation. They will start with first law, second law, third law, because the interview is 1 hour long. So you will start from the very basics. yes ma'am, Class 11th, 12th physics also. And then maybe BSc DU syllabus. Don't cover all the subjects, otherwise you won't be able to cover. Just cover 3 subjects. yes ma'am, Fine, Mohit. okay sir.
तो प्रिपेयर दिस टॉपिक्स और इस डायरेक्शन में थोड़ा सा इंप्रूव करो. व्हेन इज फाइनल इंटरव्यू? 6th of June, sir. 6th of June, right? Yes, sir. Okay.